Hello 12th class students. In the last lectures we have seen matrices and all the operations and the transpose and adjoint etc. According to the new syllabus prescribed by the CBSE, this was the total chapter of matrices. Today we'll start with determinants. Uh, this chapter is similar to matrices but still has a difference. So we'll see. We know that there are square matrices, like for example this is a square matrice. Okay, so you've seen we can do multiplication, addition, etc. on two matrices or find the adjoint, etc. But if we see a single matrice, it doesn't have any fixed value. A single matrice doesn't represent any fixed value. So hence there is a concept of determinants. And what is a determinant? It's also like a square matrice, but the sign of a determinant is changed like this. We don't put brackets in a determinant, we put straight lines. So this is a determinant, and the difference between a matrice and a determinant is that determinant has some fixed value, a single determinant. We don't need two determinants to multiply and find the value, etc. And a determinant is always a square matrice. It couldn't be of the order 3 into 2 or 2 into 3. It's always of the order 3 by 3 or 2 by 2, 4 by 4, etc. And it contains a specific value. So this is the basic difference between a matrice and a determinant. So how to find the value? The first question arises. So if we see a determinant of the order 2 by 2, it's simple to find the value. So we'll see, for example, 2, 5, 3, 1. Suppose this is a determinant. This is how we denote a determinant. Determinant A. So this is a determinant. So how to find the value of it? So this is a basic technique. Cross multiply 2 into 1 and cross multiply 5 into 3. And put a minus sign between them. 5 3 is 15. So this value is minus 13. So minus 13 is the value of this determinant. If we see one more example, like 7 2 9 1. Okay, so how to find the value? Cross multiply and put a minus sign between them. And first comes this term, 7 ones are 7 minus 9 twos are 18 minus 11. So minus 11 is the value of this determinant. So this is the basic process to find the value of a 2 by 2 determinant. Now, if we see for a 3 by 3 determinant, it's not so simple to find the value. For example, if we take a determinant as an example, 1 minus 3, 2, 4 minus 1, 2, 3, 5, 2.
This is of the order 3 by 3 because it has 3 rows and 3 columns. So how to find the value? So first we need to understand two concepts to find the value: minors and cofactors. So what are minors and cofactors? First we take minors. So actually इसमें 9 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, 3 रोज और 3 कॉलम्स. तो हर एक एलिमेंट या हर एक नंबर जो है उसका एक माइनर होगा और हर एक नंबर का एक कोफैक्टर होगा. मतलब 9 माइनर्स होंगे और 9 कोफैक्टर्स होंगे. और माइनर्स भी प्लेस के हिसाब से निकालेंगे. जैसे फर्स्ट माइनर लिया हमने 1 1. 1 1 कौन सी प्लेस है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि नंबर 1. इसकी प्लेस होती है 1 1 और इस यानी कि हम 1 का माइनर निकाल रहे हैं. इसका माइनर ऐसे निकालते हैं कि जिस रो और जिस कॉलम में है ये, उसको हम हटा देंगे. ओके. और फिर जो हमने 2 by 2 मैट्रिक्स में किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो हम करेंगे विथ अ माइनस साइन इन बिटवीन. तो कैसे आएगा? m11 इज इक्वल टू -1 2 5 2. इसकी वैल्यू निकाली. सो -1 इंटू 2 -5 इंटू 2 इज इक्वल टू -2 -10 -12. सो माइनर 1 1 आ गया -12. ओके. अब M12 निकालते हैं. M12 क्या होते हैं? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 3 का माइनर निकाल रहे हैं. उसके लिए क्या करेंगे? जिस रो में 3 है वो हटाई, जिस कॉलम में 3 है वो हटाया, और बाकी जो नंबर है उसका डिटर्मिनेंट बनाया. यानी कि ये हट गया, ये हट गया, 4 2 और 3 2. ये M12 है इसका माइनर. इसकी वैल्यू निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस बीच में, 4 2 ज़ा 8 -6 इज इक्वल टू 2. इसकी वैल्यू आ गई 2. वैसे ही M13 क्या होता है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ओके. सो यानी कि 2 का माइनर निकाल रहे हैं हम. और अब उसमें ऐसा होगा कि ये रो हटाई और ये कॉलम हटाया और उस बाकी का डिटर्मिनेंट बनाया. 4 -1 3 5 5 4 ज़ा 20 -3 -1 -3 23 23 आ गया. ओके. इसी तरह हम M21 M31 M22 M32 M23 M33 इसी तरह हम 9 माइनर्स निकाल लेंगे. अब जैसे M21 निकालना है, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 का माइनर निकालना है. जिस रो में है वो हटाई और जिस कॉलम में है वो हटाया. बाकी जो 4 नंबर्स बचे उसका डिटर्मिनेंट बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली. दिस इज द बेसिक प्रोसेस टू फाइंड द माइनर्स. अब कोफैक्टर फाइंड करने का प्रोसेस देखते हैं. कोफैक्टर्स माइनस से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. उसमें बस ये होता है, जैसे अब हम C11 लेंगे, कोफैक्टर 1 1.
उसमें यह आएगा कि जो माइनर था वो तो लेना ही है, माइनर इंटू -1, माइनर इंटू -1 टू द पावर ये जो आई जे है 1+1, सो आएगा -1 टू द पावर 2, -1 इंटू -1 +1 होता है, सो 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12। तो C11 का कोफैक्टर भी 12 ही आया। -12 था। अब C12 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 12, सो हम करेंगे माइनर ऑफ 12, तो -2 था, माइनर ऑफ 12 इंटू -1 टू द पावर I प्लस j 1 + 2, सो -1 टू द पावर 3 इंटू 2, -1 टू द पावर 3 क्या होता है, -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू -1 अगेन -1, सो -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। सो विल सी दैट C11 के केस में जो माइनर था और कोफैक्टर था उसकी वैल्यू एक ही आ रही थी, बट C12 के केस में माइनर और कोफैक्टर में माइनस का डिफरेंस आ रहा है। माइनर +2 था और कोफैक्टर -2 है। इसी तरह हम M13 निकालेंगे, मतलब C13 होता है माइनर यानी कि 23 इंटू -1 टू द पावर I प्लस जे 1 + 3 यानी कि 4, -1 टू द पावर 4 1 ही होगा, सो 1 इंटू 23 यू मीन 23। सो अगेन जो कोफैक्टर 13 आया वो माइनर 13 के इक्वल ही आया। सो हम देखेंगे कि ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा कोफैक्टर, ये माइनस में एंड ये माइनस में। मतलब जिन भी आई जे यानी कि रो और कॉलम का सम इवन नंबर है वो पॉजिटिव आएंगे कोफैक्टर्स, और जिनका सम ऑड नंबर है वो नेगेटिव आएंगे कोफैक्टर्स। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इस वीडियो के नीचे मैं आपको इसके थ्योरी के भी कुछ PDF दूंगा, उसमें से आप इसकी थ्योरी रीड कीजिए और कुछ एग्जांपल्स देखिए जिससे माइनर्स और कोफैक्टर्स को निकालने का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो।